Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is the video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important sources, that is the Hindu and Indian Express. So let's get started with the topic first. So today is 28th of August. So the first topic is Atal Talang at the Rohtang Valley. The second topic is subgroup among the ST/SC in the states. This is by the Supreme Court. Now, the third topic is participants needed in the phase 3 trial. The phase 3 trial is about to commence. So, very soon the participants would be required. So, who would be the participants of the phase 3 trial? That is there in the editorial. Now, Atmanirbhar Bharat in the defense manufacturing. So, this is the fourth important topic. Now, the last is basically the Great Andaman tribe test COVID positive. This is the first time that COVID-19 people have been reported from the Great Andaman Nicobar. Right. Apart from this, we'll have some MCQs question at the end of this video with the explanation of yesterday question. कल के जो सवाल थे उसके correct option और explanation भी मैं आपको बताऊंगा. And a good news from all the aspirants that we are organizing All India mock test series for 2020. So the upcoming prelims examination, which is scheduled for 4th of October. So before you write the main examination, the actual examination, you need to thorough with the concept and you need to check yourself where you stand, right? So it is very important that you have to go through the All India mock test. So the test is organized on 30th of August. The timing would be from 11 a.m. and the top 50 student would be getting some benefit. For more details, you can log into the description of this video. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और इस लिंक को चेक करके रजिस्टर कर सकते हैं, राइट? Now the first topic is Atal Tunnel at Rohtang Pass. This is there in the Indian Express. बात की गई है जो रोहतांग पास है, वो जो टनल है बेसिकली हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे. सो दिस पॉइंट इज अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स और यहाँ पे जो ज्योग्राफी के जो एस्पेक्ट्स हैं वहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एंड एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज़ पेपर 2, राइट? गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी, वहाँ पे जो टॉपिक मेंशन है आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर में, देयर इट कैन बी इम्पॉर्टेंट. एक 9 किलोमीटर की टनल बनाई जा रही है पीर पांजल रेंज पे. पीर पांजल रेंज जो है वहाँ पे दैट हैज़ बीन नेम्ड बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईवे टनल अबव द एल्टीट्यूड ऑफ 10,000 फीट. सो दिस इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है. ना द लास्ट बात करें अगर टनल की तो रोहतांग पास में है, मनाली इज़ अबाउट टू कम्प्लीशन. जो रिसेंट में इस प्रोजेक्ट को डिले कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द कोविड-19, राइट? सो दिस वाज डिलेड बट इट इज़ देयर इन द कंप्लीशन और इट इज़ एक्सपेक्टेड इट वुड बी इनोग्रेटेड बाय द लेफ्ट जो सितंबर है, इट्स एंड के सितंबर में इसको इनोग्रेट कर दिया जाएगा. तो बात करें टनल की, जो अटल टनल है वो है क्या, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है. मैं किलोमीटर पे स्पेसिफिकली इस वजह से जोर दे रहा हूँ कि कई बार एग्जामिनेशन में अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज किसी और दूसरे एग्जामिनेशन में किलोमीटर भी पूछ लेते हैं. सो 8.8 किलोमीटर इज द लेंथ, द टोटल लेंथ रोहतांग पास, जिसमें आपको बताया वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल होगी विद एल्टीट्यूड ऑफ 300 मीटर और 3000 मीटर 10,000 के आसपास है, राइट? सो दिस इज मोर ऑफ 10,000 फीट. Now coming to the Rohtang Pass, that is located in the state of Himachal Pradesh. Himachal Pradesh में located है. This is a tourist spot as well, a familiar tourist spots. और ये एक फायर प्रूफ इमरजेंसी टनल बनाई गई है. द मेन टनल इटसेल्फ इज़ अ फायर प्रूफ बिकॉज टनल्स में कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, इंडिया में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे फायर के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं. एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द पीर पांजल रेंज ऑफ द हिमालयस. टोटली बिफोर ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. Now it connects Kullu Valley to Lahaul and Spiti Valley of the हिमाचल प्रदेश. ये दो वैली को कनेक्ट करती हैं. बात करें रावी रिवर जो है दैट राइज ऑन द वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास एंड कुल्लू हिल्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश. तो कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं जो भी आपको ध्यान रखने हैं. Now this is the image of the Rohtang Pass. As I told you, the world highest tunnel. You can see the image. The construction was in progress, and this is the outer look. This is the exit of that. Right, so this is the view of, this is a Pir Panjal range and the Rohtang Valley, right? this ये image है. Now safety features की अगर बात करें तो यहाँ पे जो इमरजेंसी है स्केप टनल्स हैं, दे आर द मेन टनल. और यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट को लेकर के बेसिकली जो रेंडर्स जो मेन टनल है उनको एक अनयूजेबल तरीके से सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें बनाई गई है. एंड द टनल वुड प्रोवाइड टेलीफोन एवरी 150 मीटर्स पे टेलीफोन होगी.
फायर हाइड्रेंट्स होगी आफ्टर एवरी 60 मीटर, और इमरजेंसी एग्जिट होगी आफ्टर एवरी 500 meters. So this is all the safety measures that basically the construction people have taken. बहुत ही इसको तरीके से बनाया गया, अगर कोई भी इंसिडेंट हो तो उसके escape routes आराम से अवेलेबल हों. एंड द स्ट्रैटेजिक एडवांटेज इज टू द रोहतांग टनल, और इसके जो बेनिफिट्स है वो मैं आपको बताता हूँ. एडवांटेजेस क्या हैं इस टनल के. सो सबसे पहले अगर बात करें जो डिस्टेंस है बिटवीन द मनाली एंड द लेह, इट वुड बी रिड्यूस्ड बाय 46 किलोमीटर. सो अगर मैं 46 किलोमीटर की बात करूं, जब आप माउंटेन्स रेंज में होते हैं वहाँ के, जब आप नेशनल हाईवे को ट्रैवल करें या के स्टेट रोड को ट्रैवल करें, तो 46 किलोमीटर ट्रैवल करने में यू टेक 3 आवर एटलीस्ट, राइट. तो बहुत सारे टाइम सेव करेंगे आपसे. 46 किलोमीटर जो फ्लैट रोड्स हैं, जो हमारे नेशनल हाईवे होते हैं नॉर्मल, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते. जब आप पहाड़ों पे चल रहे हो, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन द हिली एरियाज, 46 किलोमीटर मीन्स अ लॉट, राइट. एंड द टनल प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू द रोहतांग पास, के लिए एक अल्टरनेटिव होगी. एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी. पहले होता क्या था, कई बार वेदर की वजह से लद्दाख के जो रीजन है या उधर की जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से बंद हो जाती थी. सो एक बूंद होगी रेजिडेंट वहाँ के लोगों के लिए. लाहौल बेसिकली जो स्पिटी वैली है, वहाँ के लोगों को जो कट ऑफ हो जाता था बिकॉज ऑफ द हेवी स्नोफॉल, तो वो जो समस्याएं हैं वो आने वाले समय में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, राइट. नाउ द अदर टॉपिक दैट इज सब ग्रुप अमंग द ST/SC इन द स्टेट, राइट. सो दिस इज देयर फ्रॉम द हिंदू, दिस इज देयर फ्रॉम द हिंदू. तो व्हाट यू कैन डू, बेसिकली दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब ग्रुप को लेकर के. अरुण मिश्रा की जो बेंच है, उन्होंने इस चीज़ को इस बारे में बताया, जजमेंट दी है कि सब ग्रुप हो सकती है ST/SC ग्रुप्स में भी, राइट, ST/SC कास्ट में भी. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है आपके जनरल स्टडीज़ पॉइंट 2 से भी, और ये एथिक्स पेपर में भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे डायरेक्ट केस स्टडी से भी सवाल पूछे जाएंगे, राइट. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी एज वेल. 5 जज की बेंच है जिन्होंने इस जजमेंट को दिया है. अरुण मिश्रा वाज हेडिंग दिस बेंच, और इन्होंने कहा है कि स्टेट लेवल पे बेसिकली सब क्लासिफाई किया जा सकता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को. जो सेंटर लिस्ट है उसमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा सकती है फॉर द वीकेस्ट ऑफ द वीक. क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, जैसे कि आप OBC में देखते होंगे, OBC में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने लाया था, तो इस तरह से कुछ यहाँ पे भी करने की कोशिश की जा रही है. बट लेट्स सी, पॉलिटिकल विल की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि समथिंग विच हैज़ टू बी पास्ड हैज़ टू बी कम फ्रॉम द पार्लियामेंट. तो जब तक पार्लियामेंट इस चीज़ को पारित नहीं करती है तो ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो जजमेंट को री एग्जामिन करते हुए, जो 2005 की जजमेंट थी, जहाँ पे दे हेल्ड कि जो शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, दे कैन नॉट फर्दर बी सब क्लासिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन के लिए. तो ये सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी गाइडलाइन, पहले इन्होंने जजमेंट में ये कहा था, 2005 की ये जजमेंट है. बट अब इसी को चेंज करते हुए अभी जो अरुण मिश्रा की बेंच है, उन्होंने कहा है कि स्टेट कैन डू दैट. जो सेंटर लिस्ट है उसमें चेंजेस की जा सकती है. अब बहुत ही ध्यान से समझे इसको, क्योंकि जब एनालिटिकल क्वेश्चन आप लिखोगे तो यू हैव टू कवर द एंटायर एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, राइट. आर्टिकल 341 और 342 की अगर बात करें, तो जो सेंटर लिस्ट है, बेसिकली जो सेंटर लिस्ट होती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, दैट इज टू नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट. ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट को दी गई है अंडर आर्टिकल 341 एंड 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बल्कि कंसेंट जो है वो पार्लियामेंट देती है. It has to be notified by the president, but the final approval has to come from the parliament, right? And it is required to exclude or include the castes in the list. तो जो सेंट्रल लिस्ट बनेगी, किन कास्ट को, सब कैटेगरीज को इसमें रखना है या नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे डिसाइड हो सकती है. इन शॉर्ट की अगर बात करूँ तो स्टेट्स के पास इतना पावर नहीं है, यूनाइटल पावर नहीं है, जहाँ पे वो किसी कास्ट को या सब कास्ट को इस लिस्ट में हटा सके या ऐड कर सके. स्टेट को इस चीज़ के लिए एम्पावर नहीं किया गया. क्लियरली स्टिल डू नॉट हैव द पावर. तो इस पे आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि क्या स्टेट एम्पावर है या नहीं, राइट. सुप्रीम कोर्ट के कुछ और इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स आए हैं इस चीज़ को देखते हुए. इन्होंने कहा है कि जो कास्ट स्ट्रगल चल रही है इंडिया में विद इन द रिजर्व कास्ट, जो रिजर्व क्लास है, जो ST/SCs हैं, उनमें भी एक कास्ट स्ट्रगल है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सके, और जो बेनिफिट्स है वो एक्चुअल जो बेनिफिशरीज हैं उनको पास करने की ज़रूरत है. Now, state cannot be deprived of the power. State deprived नहीं हो सकता power का, and has to take care of all the qualitative and quantitative difference between the classes, right? तो जो quality difference है, जो quantitative difference है,
उसको मतभेद करने, उसको अंतर करने की ज़रूरत है, उसको डिफरेंस करने की ज़रूरत है। और ये सारी जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस हैज़ टू कम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सो स्टेट गवर्नमेंट शुड इंश्योर कि वी आर प्रोवाइडिंग अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिफरेंस अमंग द पीपल, अमंग द सोसाइटी ऑफ द रिजर्व्ड क्लास, राइट। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट जजमेंट थी, चिनैया जजमेंट थी, दैट हैज़ हेल्ड along with the states to unilateral, और इनका कहना था कि make a class within the class of member of the scheduled castes. So this is what the judgment has said. अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो ये पॉइंट आप बिल्कुल मेंशन करें, ये जजमेंट ऑलरेडी है। So which would amount for the tinkering with the presidential list. तो इट हैज़ टू कम बिकॉज जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट है वहाँ से एक बार पास हो गई, लिस्ट नोटिफाइड हो गई, फिर पार्लियामेंट में इनको जाना पड़ेगा। व्हेन द पार्लियामेंट अप्रूव इट, देन इट इज़ फाइनली लिस्टेड इन द सेंट्रल लिस्ट, राइट। सिग्निफिकेंस की बात करें, क्या सिग्निफिकेंस होगी अभी जो रिसेंट में जजमेंट आई है, जो अरुण मिश्रा की जो बेंच थी, उन्होंने जो जजमेंट दी, उसके क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो सिग्निफिकेंट है, प्ले वो फुल्ली इंडोर्स करती है कि इस तरह के जो क्रीमी लेयर के जो कॉन्सेप्ट थे ओबीसी में, दैट हैज़ टू बी अगेन इंक्लूडेड इन द एसटी एंड एससीज। सो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ओबीसी के बारे में क्लियरली गाइडलाइन दिया हुआ है। नाउ एससी ने नोटिफाई किया है कि सिटीजन कैन नॉट बी ट्रीटेड सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड till they are perpetually, right, and those who come up must be excluded in the creamy layer। ऐसे कई लोग हैं जो कि क्रीमी लेयर के कैटेगरी में आते हैं, एसटी एससी में रहते हुए भी, उनको भी एक्सक्लूड करने की ज़रूरत है। और मैं आपको यहाँ पे एक बार बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिस हैज़ टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कानून पारित करती है, उनके बिना ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर प्रेसिडेंट इसको नोटिफाई भी करते हैं तो दिस हैज़ टू कम टू पार्लियामेंट एंड हैज़ टू गेट अप्रूवल, राइट। नाउ द अदर टॉपिक दैट इज पार्टिसिपेंट्स नीड इन द फेज 3 ट्रायल। द हिंदू में एक एडिटोरियल है ये, जो टी जैकब जॉनसन और एम श्रीदर्शन ने उनको लिखा है। इनके बताई गई है इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में, कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें फेज़ 3 ट्रायल को लेते हुए, क्योंकि जब फेज़ 3 के ट्रायल्स में जाएंगे तो सारे ये लास्ट स्टेज होती है जिसके बाद वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती है, राइट। तो सारे चेक एंड बैलेंसेस देखते हुए किन लोगों को फेज़ 3 में रखना चाहिए। तो ये टाइटल पूरी उसी पे कंसर्न है, मैं आपको आराम से एक चीज़ बताऊंगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कुछ हद तक, और मेंस में आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जिस तरह से देखिए कोविड-19 का जो एक्सपोजर है, सबसे ज़्यादा जो लोग एक्सपोज्ड हैं दे आर द हेल्थ वर्कर, जो फ्रंट लाइन हमारे हेल्थ वर्कर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेस हैं, दे आर ऑन द हाई रिस्क एनवायरनमेंट एंड दे हैव इन द रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ द इन्फेक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी जो एक रिस्क ग्रुप है वो यही लोग हैं। तो जो वनरेबल ग्रुप हैं दे आर एडरली, जो बेसिकली जो बुजुर्ग हैं 65 के ऊपर जो लोग हैं, दे आर द मोस्ट वनरेबल। उसके बाद द पीपल विद द कोमॉर्बिडिटीज़, जिनको एक से अधिक बीमारी है, राइट, उनको कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं। सो वो लोग ऐसे हैं जिनको 5 फोल्ड से लेके 15 फोल्ड, नो दिस इज 5 फोल्ड इंटू 15 फोल्ड तक की उनको इन्फेक्शन की चांसेस हैं। तो जो हेल्थ केयर वर्कर हैं और जो हमारे वनरेबल ग्रुप हैं, दैट नीड टू बी ट्रीटेड इन द प्रायोरिटी कैटेगरीज। और जो वैक्सीनेशन है अगर आती है तो सबसे पहले इनके लिए अवेलेबल होना चाहिए, राइट। तो बात करें प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द कोविड-19, तो बेसिकली जो 2 वैक्सीन्स अभी एक्सेप्ट किए गए हैं, एक तो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोवैक्सीन है, और दूसरी एस्ट्राजेनिका के साथ बेसिकली जो कोलैबोरेशन चल रही है उसको लेकर के भी है। 2 वैक्सीन हमारी अप्रूवल में है, फेज़ 3 ट्रायल पे जा चुकी है। उन्होंने फेज़ 1 और फेज़ 2 को कम्प्लीटली पास कर दिया। नो वैक्सीन की एबिलिटी देखी जाती है, जब वो फेज़ 2 कंप्लीट करती है तो कितनी उसमें एबिलिटी है वायरस को न्यूट्रलाइज करने की, और वो टी सेल्स जो है उसको किस तरह से मेडिएट कर रही है इम्यूनिटी को कंट्रोल करने में, राइट। जो टी सेल्स हैं, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है, T4 सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी में जो बाहर के वायरस होते हैं उनसे लड़ने में मदद करते हैं। तो जो नेचुरल इन्फेक्शन है बेसिकली, चाहे वो वायरस न्यूट्रलाइजिंग हो, जो एंटीबॉडीज़ हो, टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, उसको वैक्सीन के थ्रू फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल में चेक किया जाता है कि वो कितनी बड़ी है। ना जब वैक्सीन पास हो जाती है फेज़ 2 ट्रायल से, जब आखिरी स्टेज होता है फेज़ 3 का, एक बार जब वो उससे पास हो जाए तब फिर फ्रीडम होती है कि उसको मास प्रोडक्शन किया जा सकता है। और ये सारी चीज़ों में फेज़ 3 तक ये देख ली जाती है कि वैक्सीन की एफिकेसी कितनी हाई है,
कोई भी साइड इफेक्ट्स अगर रिपोर्ट होते हैं तो फिर से फेज 3 ट्रायल को कंटिन्यू किया जाता है, राइट। सो इसीलिए एक बार जब फेज 3 जब सक्सेसफुल हो जाएगी तब ड्रग्स की मास प्रोडक्शन होगी। जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, आईसीएमआर है, ड्रग्स जनरल ऑफ इंडिया है, उनके साथ इनको अप्रूवल लेना होगा। उसके बाद जो वैक्सीन है उसकी मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर क्लोज टू दिसंबर और जनवरी ये चीज़ें हो जाएंगी और जो मास मैन्युफैक्चरिंग है वो फरवरी मार्च एंड तक होने लग जाएगी। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशंस की अगर बात करें तो 3 बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, टू प्रोटेक्ट द वनरेबल इंडिविजुअल फ्रॉम द सीरियस डिजीज एंड द डेथ। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम एक्वायरिंग और अनविलिटिंगली ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द पेशेंट्स एंड फैमिली। ऐसे कई लोग हैं जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर है, जो हमारे पुलिस हैं, जो इस हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, दे कैन नॉट डायरेक्टली गो टू देयर होम बिकॉज इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस चांसेस कि वो इन्फेक्ट कर सकते हैं दूसरे लोगों को भी। एंड टू इरेडिकेट द वायरल इन्फेक्शन। दिस आर द सम ऑफ द मेन मोटिवेशन और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वैक्सीनेशन प्रोसेस। उसके अलावा ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वैक्सीन एफिकेसी, उसकी क्या सेफ्टी है, कहाँ उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जो वॉलंटियर है उनको इनरोल करना, उनको सेलेक्ट करना, कौन कौन से रिस्क ग्रुप हैं, कौन कौन से कैटेगरी के एज ग्रुप हैं जिनको फेज 3 ट्रायल के लिए रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। एंड दिस इज समथिंग विच हैज़ टू कम फ्रॉम द एक्सपर्ट, राइट। तो ट्रायल बेसिस पर रखा जाता है, उनको प्लेसिबो की इंजेक्शंस लगाई जाती है, फिर चेक किया जाता है कि क्या उनके बॉडी में उसके रिपरकशन हो रहे हैं, राइट। वाई हेल्थ केयर वर्कर शुड बी देयर, जो सबसे पहले बात की गई है, तो देयर शुड बी रीज़न कि जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ ऐसे लोग जो अबव 55 एज के हैं, दे शुड बी द वॉलंटियर फॉर द फेज 3 ट्रायल। क्योंकि ये एक ऐसी एज ग्रुप है जहाँ पे वनरेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और इनको सबसे ज़्यादा खतरा है। तो एक बार इन पे चेक कर लिया जाए कि इन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, बेसिकली जो वैक्सीन कितने हद तक कारगर है, हाउ इफेक्टिव इट इज़, सो वी कुड हैव अ फेयर आइडिया कि हाँ दिस इज ऑल्सो वर्किंग फॉर दिस एज ग्रुप, द एल्डरली पीपल एज वेल, राइट। तो ये पूरी कोशिश है। Now, हिस्टोरिकली अगर बात करें तो हेल्थ केयर वर्कर हैव बीन ऑफन बीन द फर्स्ट वॉलंटियर टू पार्टिसिपेट इन द सेवरल साइकोलॉजिकल एंड द फार्मालॉजिकल स्टडीज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल नेचर। क्योंकि और किसी को डायरेक्टली हम नहीं ले सकते हैं। अभी एम्स ने रिसेंटली कुछ लोगों को सेलेक्ट किया था, बेसिकली जितने लोग उसमें सेलेक्ट हुए थे उसमें हर 5 में से एक ऐसे लोग थे जिनके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी हुई थी कोविड-19 से लड़ने के लिए। सो आप ये बोल सकते हो सेरो प्रेवलेंस या फिर जो हर्ड इम्यूनिटी को लेकर के जो बातें की गई है, तो हर 5 में एक बंदा ऐसा था जिसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ इतनी थी कि वो जो कोविड-19 के वैक्सीन उससे लड़ सके। Now, inclusion of the healthcare worker for the phase 3 vaccines trials may be proved to be the silver lining। एक बहुत ही अच्छा कदम होगा, दिस वुड बी अ राइट डिसीजन, सिल्वर लाइनिंग होगी वो, जो कि बूस्ट करेगी इन द सैगिंग मोरल ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर। और हेल्थ केयर वर्कर की जो मोरल बूस्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बीइंग द पीपल हु आर कंसर्न विद ईदर देयर प्राइवेट सेक्टर और द गवर्नमेंट सेक्टर, दे नीड टू बी रियली अप्रिशिएटेड, राइट। और जो सेरो प्रेवलेंस सर्वे आई है IgG को एंटीबॉडीज़ को लेकर के, उसमें हेल्थ केयर वर्कर इज़ लाइकली टू बी 30 to 40%। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो जो फर्स्ट सर्वे हुई थी दिल्ली में, तो वहाँ पे इनिशियली 23% ऐसे लोग थे जो कि जिनको बेसिकली सेरो प्रेवलेंस में एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बनी हुई थी। अब जो सेकेंड सर्वे आई, ये मैं आपको फर्स्ट सर्वे के बारे में बता रहा हूँ। फ्रॉम द सेकेंड सर्वे इट इज़ क्लियर कि 29% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द दिल्ली, मतलब ये एक सैम्पल के सर्वे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो 29% लोगों के पास IgG के एंटीबॉडीज़ बने हुए थे, राइट। तो यू कैन सी द पीपल हु आर इन्फेक्टेड, दे डू नॉट नो कि एक्चुअली दे आर इन्फेक्टेड, उनके एंटीबॉडीज़ भी बन चुके हैं। नाउ द अदर टॉपिक दैट इज देन अगेन फ्रॉम द हिंदू, आत्मनिर्भर इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली जिससे कोविड-19 पेंडेमिक हुई है उसके बाद से गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों में आत्मनिर्भर का जो इनिशिएटिव है वो लिया है। एंड दिस इज समथिंग विच हैज़ मोर फोकस ऑन द डिफेंस सेक्टर। डिफेंस पे सरकार की काफ़ी ज़्यादा जोर है। तो ये आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 3 जहाँ पे डायरेक्टली आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, वहाँ पे भी ये फोल्डर पॉइंट के तौर पे काम करेगी। बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने हाईलाइट किया है कि हमारी कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है और एक रिलायबल वेपन सप्लायर बनने की ज़रूरत है हमारे फ्रेंडली नेशंस के लिए भी। खुद के लिए तो बनना ही है, जो हमारी इमीडिएट नेबर है उनको भी मदद करनी है।
और उनके मुताबिक इंडिया वुड कंसोलिडेट इट पोजीशन एट द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन। जो हमारी IOR है, इंडियन ओशन रीजन है, वहाँ पे भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो पूरा दायित्व है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू कम फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। ना कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स जो लिए गए हैं डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, हमने पहले भी इसको कुछ पॉइंट डिस्कस किया, आज मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले रिसेंट में नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ लिस्ट जारी किए थे, जहाँ पे बताया गया था 108 आइटम्स को लिस्ट में रखे गए थे, जो कि इस 101 जो आइटम्स हैं इनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और जो हमारी इंपोर्ट की लिस्ट है उसको कम किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट ईयर से ही गवर्नमेंट कुड आउट द सेकेंड लिस्ट, बहुत ही जल्दी सरकार दूसरे लिस्ट के साथ भी आएगी और इस नंबर को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा ताकि इंडिया अपने आप में बेसिकली आत्मनिर्भर बने और टेक्नोलॉजिकली एडवांस आइटम्स को मैन्युफैक्चर करे। बात करें, गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इशूड द ड्राफ्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, जिसको DPEPP भी कहते हैं। इस पॉलिसी के थ्रू अचीव करने की कोशिश जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसके टर्नओवर को बढ़ाया जाए, फ्रॉम $25 बिलियन तक की किए जाए, इंक्लूडिंग $5 बिलियन इन द एरोस्पेस डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज बाय 2025। तो ये टारगेट रखी गई है थ्रू द ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। उसके बाद गवर्नमेंट ने और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं, जहाँ पे FDI को बढ़ा दिया गया फ्रॉम 49% टू 74%। नाउ 74% ऑटोमेटिक जो रूट है उसके थ्रू अलाउ कर दी है, प्रीवियसली it was 49% only. Now government has undertaken reform in the sector like intellectual property, taxation में insolvency and bankruptcy जो है हमारी है, space, atomic energy, इन सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। और जो ongoing हमारी 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु पे, उस पर भी काफ़ी हद तक बहुत ज़ोर शोर से काम चल रही है। Now the target of 20,000 crore investment has to come in the next 5 years from this sector. तो जो टारगेट है वो 20,000 करोड़ के आसपास की रखी गई है। उसके अलावा जो ड्राफ्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, यहाँ पे डोमेस्टिकली सारी चीज़ों को प्रोक्योर की जाएगी, यहीं पे मैन्युफैक्चर की जाएगी, यहीं पे बिल्ड की जाएगी और करंट में 70,000 करोड़ से लेकर के 1,40,000 करोड़ तक की इसको इंक्रीज करके करना है 2025 तक। सो दिस इज फॉर द प्रेजेंट ईयर एंड द फ्यूचर टारगेट इज 1,40,000 करोड़। नाउ कॉर्पोरेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसको OFB भी कहते हैं, यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि 1 साल के तक जो और इम्प्रूवमेंट है, करेंटली अगर डिफेंस की अगर बात करें तो दिस हैज़ टू बी प्रोक्योर ओनली फ्रॉम द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब इस चीज़ को क्या करना है, एंटायरली जो हमारे डोमेस्टिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनको कुछ भी चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, सारी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स और टेक्निकल सपोर्ट्स है वो मेक इन इंडिया ही होगी, राइट। सो फॉर दिस ईयर इट वुड बी क्लोज टू 52,000 crore rupees. So these are some of the important initiatives that government has taken to promote the indigenous indigenization या आत्मनिर्भर in the defense sector. Now the last news is from the Great Andaman tribe that has been test positive in the COVID-19. Basically जो हमारे particular vulnerable tribal group है जिसको PVTG भी कहते हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतने टाइम निकलने के बाद फ्रॉम मार्च टिल अगस्त, वी आर ऑन द अगस्त एंड, पिछले 4 महीने के बाद यहाँ पे अंडमान से कोई केसेस रिपोर्ट की गई है, वो भी वैसे प्रिमिटिव ग्रुप को जिनका कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट आर द डिटेल्स दैट आर कमिंग। This is for the first time that a member of the Great Andaman tribe have been test positive since the pandemic, which has, मार्च से अगर बात करो, मार्च से पूरी लॉकडाउन हुई थी, बट इंडिया में जो इन्फेक्शन था वो ऑलरेडी जनवरी में ही रिपोर्ट कर दी जा चुकी थी। फर्स्ट केस वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम द केरला। द फर्स्ट केस ऑफ द COVID-19 इन्फेक्शन हुई है जहाँ पे जो इंडेंजर्ड हमारे पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं जिसको PVTGs भी कहते हैं, उसको आइसलैंड पे लोग इन्फेक्टेड पाए गए हैं। और जो ये ट्राइबल पॉपुलेशन है दैट मेकअप्स टू 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इनहेबिटिंग 15% ऑफ द जोग्राफिकल एरियाज, राइट। तो बात करें अगर ग्रेट अंडमान ट्राइब्स की, तो ये जो ट्राइब्स हैं जो ये दे आर वन ऑफ द 5 PVTGs में, दे रिसाइड इन द अंडमान आर्किपेलॉजी। देयर पॉपुलेशन इज जस्ट 74 इंडिविजुअल, सिर्फ 74 लोग हैं। आप देख सकते हो कितना कम पॉपुलेशन है, उसमें 5 लोग इन्फेक्टेड हैं अभी, राइट। दे आर स्पीकिंग ज़ेरू अमंग देमसेल्फ। तो अब इस लैंग्वेज को ध्यान रखिए, ये कहाँ की लैंग्वेज है, कई बार ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
और जो 5 पीजीवीटीज अंडमान में है, जो 5 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, दे आर ग्रेट अंडमानीज, जारवास, जारवास के बारे में आपने पढ़ा होगा, ओंगीज as again from the Andaman, Sompians and North Sentinelese. So these are the 5 tribe that is coming from the Andaman region. So आप इस रीजन से जो लोकेशन से जो ट्राइब्स हैं उनको भी ध्यान रख लें, प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल कल्चर से भी पूछे जा सकते हैं, राइट। नाउ कैरेक्टर ऑफ द पीवीटीजी की अगर बात करें तो पर्टिकुलर वनरेबल ग्रुप जो होते हैं उनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दे आर मोस्टली होमोजेनस, अपने में ही वो रहना पसंद करते हैं। एक काफ़ी स्मॉल साइज पॉपुलेशन उनका होता है, रिलेटिवली फिजिकली आइसोलेट रहते हैं, कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन या कास्ट से उनकी कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। दे हैव एब्सेंस ऑफ राइटिंग लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज नहीं उनको आता है, कोई टेक्नोलॉजिकली दे डू नॉट नो एनीथिंग, बहुत ही स्लोअर रेट ऑफ चेंज देखा गया है। और ये अभी भी प्रिमिटिव ग्रुप है जिनको जो जिस तरह से सोशली कनेक्टेड कहीं भी नहीं है ये ग्रुप, राइट। दे आर द मोस्ट ट्राइबल पीपल, अभी भी ऐसे लोग हैं उनकी जो क्लोथिंग स्टाइल है या जो खाने की जो प्रवृत्ति है, जो स्टाइल है, दे हैव नॉट चेंज, जो पहले पुराने 100-2 साल पहले हुआ करती थी, दैट स्टिल कंटिन्यू इन दिस रीजन। और अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस जो हमारी पीवीटीजी पॉपुलेशन है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 27 lakhs, not only in this region but in the other region as well, right? Now coming to the Dhibar Commission, Dhibar Commission के बारे में अगर बात करूँ, 1973 में ये कमीशन बनाई गई थी, जिन्होंने ट्राइबल बेसिकली प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप एक सेपरेट कैटेगरी बनाई थी जो कि लेस डेवलप होगी अमंग द ट्राइबल ग्रुप। बाद में इसी को सरकार ने नाम चेंज करके जो हमारी पीटीजीज थी उसको पीवीटीजीज कर दिया गया, राइट, 2006 में। तो ये कमीशन के बारे में भी आप ध्यान रखें, अगर मेंस में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ, जो कल के सवाल थे उसके आंसर्स मैं आपको बता दूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ए, दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द पल्लवा किंग हु सक्सीडेड इन द चालुक्य किंग was the poet of South Indian and the pattern of the arts painting at the Kanchipuram temple and patronized the Pallavas king. Statement 2 incorrect है यहाँ पे। When the Pandyas rose to the power, they too patronized the art. जो त्रिमापुरम केव है और जो जैंत्या केव है, सीतावश्रम was some of the surviving examples. तो आप अगर आपके पास फाइन आर्ट्स की बुक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, एनसीईआरटी क्लास 11th की, तो वहाँ पे आप डिटेल में इस चीज़ों को पढ़ सकते हैं। Now the second question here, again the correct option is A, that the Charter of 1600 granted East India Company an exclusive privileges of the trading through Cape of Good Hope. और जो statement 2 है वो incorrect है, मैं correct statement आपको बताता हूँ कि the charter provided for the management of company by the committee consisted of governor, deputy governor और 24 member जो कि elect किए जाएंगे, right? So this committee later to be known as the Court of Directors and the member were known as directors. Modern history class 12 बिपिन चंद्रा की जो बुक है वहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। आपके पास अगर वो पुरानी बुक नहीं है तो आप स्पेक्ट्रम से भी इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर टुडेज एमसीक्यूज क्वेश्चन ऑफ द डे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द इकोनॉमी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इट अलाउज कस्टमर टू प्री ऑथोराइज द ट्रांजेक्शन एंड पे बाय द लेटर डेट. इट विल सर्व एज एन एडिशनल डिजिटल चैलेंज इन द एक्सेस ऑफ ओवरड्राफ्ट अकाउंट. So this was there in the news prettier times and you must be familiar with the UPI, you must be using it. So it is again very easy question. तो आपको अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं, A, B, C या फिर D. So just log into the comment section. आप कमेंट सेक्शन में जाएं और यहाँ अपने आंसर बता दें. Now पॉलिटी से एक सवाल है, तो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है. प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी and the money bill can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president. So this is again an easy question but a bit tricky for many of the students who have not read Lakshmikant or any other books. तो यहाँ पे आप एक बार ऑप्शंस चेक कर लें, A, B, C या फिर D, और जो भी आपको लगता है करेक्ट है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, राइट. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Aptiplex Academy for Civil Services on YouTube. Do not forget to give a like button on this video. Sincerely thank you for listening to this video. अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.